Let's begin with the homework sum. I think 4, 5, 6, 7. 4 transactions were for homework. बराबर है? Check. We are doing with modern concepts of sold goods for cash, sales is income, cash is asset. Sales income का rule है, income increases then credit, and cash asset if asset increases then debit. So sales income increases and cash asset decreases. Reason में लिखना cash decrease, cash increases. Cash increases and sales increases, and finally cash debit and sales credit. Yes sir. And यही चीज ट्रेडिशनल में क्या होगा? सेल्स इज क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स एंड कैश इज रियल, सो डेबिट व्हाट कम्स. बेटा बराबर समझो. कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट. कूल? सॉर्टेड? एनी डाउट्स? सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 टू मिस्टर राहुल ऑन क्रेडिट. तो क्रेडिट पे बेचा है, दैट्स योर हिंट कि आपको इमीडिएटली पैसा मिला नहीं है ना? सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? राहुल एंड सेल्स. Rahul and sales. This time not cash and sales, but Rahul and sales because it is on credit. So Rahul and sales. Sales is income. Rahul is asset. Why? Because he becomes your debtor. ये क्लिक हुआ? तो sales is income. Rahul is asset. Sales if income increases then credit. Rahul if asset increases then debit. तो Rahul asset बढ़ रहा है. And Rahul increases, sales increases. Rahul debit, sales credit. In the modern, in the traditional concept, sales is income, so credit all incomes and gains, and Rahul is personal, so debit the receiver. So Rahul debit and sales credit. उधर भी फिट हो रहा है. आया ये? समझा सबको? Received rupees 7,000 on account from Rahul. Why did Rahul give us money? He was our debtor. पोकट का तो कोई पैसा देने वाला है नहीं, तो वो हमारा डेटर था, इसके लिए उसने पैसा दिया. So two accounts are cash account and Rahul account. Cash and Rahul both are assets. Cash if increases, asset increases then debit. Rahul if asset decreases then credit. Cash बढ़ा, Rahul घटा. Cash increases, Rahul decreases. Cash debit, Rahul credit. And traditional में क्या है? Cash is asset. So debit what comes in, real account. Debit what comes in. And Rahul is personal, so credit the giver. Rahul is giving us the money. Is it clear? So cash आया and Rahul is the giver. Cash debit and Rahul credit. Okay. समझ में आया ये वाला? Paid rupees 6,000 on account to Vishal. Why are we paying to Vishal? Because he was our creditor. फोकट का हम किसी को पैसा देने वाले नहीं. Unless and until you pay any expense or you settle any account. Okay. झाड़ पे तो नहीं उठता पैसा. So you are paying Rahul because he is your creditor. You are paying Vishal because he is your creditor. So the two accounts are Vishal account and cash account. Vishal is liability and cash is asset. How come Vishal is a liability? देना बाकी है क्योंकि माल खरीदा था ऊपर. He was a creditor. So Vishal was liability and cash is asset. And rule for liability: if liability decreases then debit, and cash के लिए cash decrease, asset decreases then credit. Cash decreases, Vishal decreases, Vishal debit, cash credit. Vishal debit, cash credit. And in the traditional concept, Vishal is personal, so debit the receiver, and cash is real, so credit what goes out. Finally, Vishal debit, cash credit. चारों आए? Any mistake? Anyone? Any doubts? Mistake? अच्छी समझ में आ गई? क्या थी? Fifth. Liability asset. अच्छा, इनकम और एसेट नहीं, सॉरी, एसेट और एसेट दोनों डेटर था. और कोई सेम मिस्टेक. देखो बेचते वक्त कॉमन एरर है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से होगा. कभी भी सेल करते हो ना आप किसी को, whenever you sell goods to anyone, that guy becomes your debtor, so he is your asset. And whenever you buy from anyone, that guy becomes your creditor and that is your liability. परचेज किया क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल किया डेटर एसेट. धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो स्मूथ होएगा मैकेनिज्म. यस, सेल्स एंड
income increases and Rahul asset increases. What have you written? Asset and liability. Asset and asset. हाँ same mistake. उसने कुछ और किया, liability. Asset and asset कैसे? What have you These are written? taken in cash account and this account. Cash and Rahul तब आएगा when Rahul gives us cash. Which one you are talking about? The fifth one. सेल्स हो रहा है ना, ऑन क्रेडिट. इसका मतलब तुमने राहुल को सेल किया गुड्स और पैसे तो आए नहीं है, तो हाउ कम कैश? कैश कब आएगा? कैश एंड राहुल, जब राहुल गिव्स अस कैश. कैश आया या गया, देन ओनली यू कैन यूज कैश अकाउंट. अभी तो माल बेचा और पैसा आया नहीं है, इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस. फ्यूचर में आएगा पैसा. बराबर है? करें आगे, चलो कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वाला देखो, रिसीव ₹3,000 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन बाय चेक. अभी जब भी ये वर्ड दिख जाए, चेक दिख जाए ना, चेक या फिर और भी आ सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. फुल फॉर्म ऑफ RTGS? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. IMPS? मोबाइल. IMPS, immediate payment service. Okay, UPI? Paytm is an app. It supports UPI. Unified Payment Interface. Okay. So basically तुम्हारा ये सब जो भी चीजें हैं, ECS बोला, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, NEFT, RTGS, ये जो भी चीजें हैं, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है. RTGS में आप ज्यादा अमाउंट, 2 लाख के ऊपर वाले 20-25 लाख तक ट्रांसफर करने तो कर सकते हो. 2 लाख के नीचे वाले NEFT में करने हैं तो कर सकते हो. IMPS फास्ट होता है, जैसे आपने पट करके इधर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया बैंक का, दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है. NEFT में थोड़ा सा टाइम लगता है. RTGS बड़े अमाउंट्स के लिए होता है. तो ऐसा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. ऑल इन ऑल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, IMPS, UPI, ECS, इवन योर चेक्स, ये कोई भी वर्ड दिख जाए, इसका 100 चीजों का मीनिंग एक ही होता है कि ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, कैश के थ्रू नहीं हो रहा है, रोकड़ा नहीं जा रहा है. इट इज थ्रू बैंक. इट इज थ्रू बैंक. दैट्स योर हिंट कि मनी इज नॉट इन रोकड़ा फॉर्म. इट इज थ्रू बैंक अकाउंट. You can make the payments through cash or bank also. You know that, right? बिजनेस का बैंक अकाउंट है, बैंक में से भी पेमेंट कर सकता है, रोकड़ा भी दे सकता है. पैसा लेना है तो कैश में भी ले सकता है, बैंक में भी ले सकता है. बैंक में लिया तो जनरली व्हाइट कंसिडर होता है, कैश में लिया तो जनरली ब्लैक कंसिडर होता है. ब्लैक का मतलब क्या है कि वो चीजें बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए लेकिन जनरली लोग करते नहीं है, तो वो ब्लैक के ट्रांजैक्शन, वो टैक्स इवेजन में चला जाता है. ऐसा होता है. Okay? तो यहां पर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन बाय चेक. सो इधर कमीशन मिल रहा है आपको, ये तो समझ में आ गया. कैसे मिल रहा है? कैश में मिल रहा है या चेक में मिल रहा है? चेक में मिल रहा है. तो कौन से 2 अकाउंट आएंगे? कैन यू थिंक? एक कमीशन अकाउंट, ये तो पक्का है, और दूसरा क्या होगा? बैंक अकाउंट. नॉट कैश, यू राइट बैंक. सर चेक अकाउंट होता है? नहीं होता. चेक अकाउंट जैसा कोई चीज नहीं होता. चेक इज अ मोड. जैसे NEFT से किया, डेबिट कार्ड से किया, क्रेडिट कार्ड से किया, IMPS, UPI से किया, गूगल पे से किया, फोन पे से किया, ओके, पेटीएम से किया, ये सबका मतलब एक ही है, पैसे कहां से जा रहे हैं? बैंक से. तो सबके लिए एक कॉमन अकाउंट है बैंक. डोंट राइट पेटीएम अकाउंट, डोंट राइट गूगल पे अकाउंट, डोंट राइट भारत पे अकाउंट, डोंट राइट ऑल दोस अकाउंट. देयर इज ओनली वन अकाउंट फ्रॉम वेयर योर मनी इज गोइंग, दैट इज बैंक. समझ में आया? तो एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एनी इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एनी चेक ट्रांजैक्शन, money will be either going through bank or received by the bank. Is it clear? So commission and bank. Now we are doing modern, right? So tell me the type. Income है commission and bank is asset. Hope this is clear. Yes. Commission is income and bank is asset. So think about the rule for income. What rule will apply? Income increases, that is. Sorry. If income increases,
then credit. Is that right? If income increases, then credit. And बैंक में पैसा आया कि गया? Think about it. You received commission. आया. तो बैंक बढ़ेगा कि घटेगा? बैंक कब बढ़ेगा? जब बैंक में पैसा आया. बैंक कब कम होगा? जब बैंक से पैसा गया. Same rule, just like cash. So both are asset. बढ़ा कि घटा बैंक? सोचो. बैंक बढ़ा पक्का? આજે ટ્યુઝડે છે. હા પણ આજે મારો લેક્ચર નથી. ઓકે ઓકે એટેન્ડન્સ સેકન્ડ બેચ 90 10 30 હા 90 10 30 ફિક્સ રાખજો. सो बैंक पैसा आया कि गया? पक्का? जाएगा कब? जब जाएगा जब पे करोगे, जब चेक दोगे किसी को या किसी को पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा. ये रिसीव किया तो आया. सो इफ एसेट इंक्रीजेस देन डेबिट. बराबर छे? ओके. नाउ रीजन क्या लिखोगे? कमीशन increases, income बढ़ा, commission income increases, income increases, and bank also increases. Is that right? So bank account is debited and commission account is credited. समझा? Hello. And amount is 3000. मैंने क्यों ये assume किया कि ये बैंक में आया होगा? What was the hint? Check. चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, IMPS, सब सेम. जी पे, फोन पे, गूगल पे, सब सेम. सबके लिए बैंक यूज करना. ट्रेडिशनल में समझाओ मुझे. ट्रेडिशनल में व्हाट इज कमीशन? नॉमिनल. एंड बैंक पर्सनल, नॉट रियल. बैंक वाज एन एक्सेप्शन. याद है? रियल के दो एक्सेप्शन थे, डेटर एंड बैंक. So bank was personal and commission was nominal. Rule applicable for commission in traditional. Nominal का क्या rule apply करेगा commission को? Credit all incomes and gains. Income है. Credit all incomes and gains. Bank personal था. Debit the receiver. It's receiving, right? Or is it giving? Receiving. Debit the receiver. Credit all incomes and gains. Fit हो रहा है? बैठा दिमाग में? Next one. Paid rupees 2000 towards salary. What are the two accounts? Either cash and salary. Cash and salary. What is cash? What is salary? Expense. Very good. Cash is asset, salary is expense. Rule for asset, cash. बढ़ा कि घटा? गया ना, पैसा दिया. So if asset decreases, then credit. Okay. What about salary? Expense बढ़ा कि घटा? If expense increases, then debit. बराबर है? जितना सैलरी पे करोगे उतना बढ़ेगी. Cash decreases, salary increases. बराबर. Finally, salary account is debit, cash account is credit by rupees 2000. Okay. Think in traditional, what is salary, what is cash? Nominal and real. So rule for salary, debit all expenses and losses. Expense. And cash, credit what goes out. बराबर है? 3 चीजें करनी है ट्रांजैक्शन को देख के. आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट. 2 अकाउंट होने ही वाले हैं, एक्सचेंज कर रहे हो इसके लिए. क्लासिफाई देम either by traditional or by modern and apply the golden rules. Okay? either traditional का करो या modern का करो. It's as simple as that. खाली रूल्स परफेक्ट बैठने चाहिए और इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ट्राई टू इमेजिन दैट. इमेजिन करो कि आप ही कर रहे हो, आपका बिजनेस वो कर रहा है, तो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा.
कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्लियर कट विजुअलाइज करना। ओके, नेक्स्ट वन, इधर आप सैलरी पे कर रहे थे तो पैसा जा रहा था। देन गुड्स वर्थ 1500 आर लॉस्ट इन ट्रांजिट। रिमेंबर वी हैव डन दिस अर्लियर। व्हाट आर द टू अकाउंट्स? एक तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, जैसे लॉस बाय फायर था वैसे लॉस इन ट्रांजिट, एंड द सेकेंड अकाउंट इज परचेज अकाउंट। याद आया? जितना माल खरीदा था उसमें से कुछ माल डिस्ट्रॉय हो गया। जेठालाल कैश गया क्या? आपने जेठालाल ने 100 मोबाइल खरीदे थे तभी कैश गया, वो परचेज था। अब वो 100 मोबाइल में से 10 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या गया? गुड्स गया। तो गुड्स की जगह विच अकाउंट आर वी यूजिंग? परचेज। लॉजिक समझा इसका? 100 मोबाइल में से अभी परचेज में कितना दिखना चाहिए? 10 मोबाइल अगर चले गए 90 ही दिखना चाहिए। जितना सेल किया उतना ही परचेज में होना चाहिए। याद है मैचिंग कंसेप्ट? गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स विड्रॉन, ये क्या हर साल होने वाला है? तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज में से रिमूव करके उसको सेपरेट अकाउंट में दिखा देगा। व्हाट इज दैट न्यू अकाउंट? लॉस एंड ट्रांजिट। वन इज लॉस एंड ट्रांजिट, व्हाट इज द सेकंड अकाउंट? परचेज अकाउंट। वेरी गुड। परचेज की जगह पे एक और मैंने दिया था, स्टॉक और हाँ, लॉस्ट। गुड्स या स्टॉक लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। ये भी कोई कॉलेज फॉलो करते हैं तो लिख के रख दो, या तो परचेज या तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। ओके, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इज रियल गुड्स अकाउंट, बट वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। रियलिटी में क्या यूज करते हो आप हमेशा? परचेज। ये साल भर में कहीं पर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, एंड में ही अनसोल्ड गुड्स डिस्ट्रॉय हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो लॉस इन ट्रांजिट एंड परचेज, पहले परचेज के साथ करते हैं। लॉस इन ट्रांजिट क्या है? सोचो, एक्सपेंस है। परचेज भी क्या है? एक्सपेंस है। बोथ आर एक्सपेंस। कूल। उसके बाद थिंक अबाउट लॉस इन ट्रांजिट। व्हाट रूल यू विल अप्लाई? एक्सपेंस लॉस हुआ ना, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। जितना लॉस होगा उतना ये बढ़ेगा। इफ एक्सपेंस इंक्रीजेस देन डेबिट। इफ एक्सपेंस इंक्रीजेस देन डेबिट, लॉस बढ़ा आपका, समझ में आया? लॉस, जितना भी लॉस बाय फायर, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का लॉस, चीजें हेरा फेरी करने में जो लॉस हो जाता है, गोडाउन से शोरूम में लाने के लिए या लाते वक्त ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। सो लॉस इन ट्रांजिट, okay, loss by fire, loss by floods, loss in transit. What is the other account? Purchase is also expense. क्या रूल अप्लाई करोगे? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? परचेज, परचेज घटा, लॉस बढ़ा। तो इफ एक्सपेंस डिक्रीजेस देन क्रेडिट। इफ एक्सपेंस डिक्रीजेस देन क्रेडिट। ये मॉडर्न में बराबर फिट होएगा, ट्रेडिशनल में नहीं हो रहा था यार। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स आ रहा था, बट लिख देना, आया ट्रेडिशनल में तो लिख देना। अच्छा, उसके बाद लॉस इंक्रीजेस, लॉस इन ट्रांजिट इंक्रीजेस, एंड परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस, परचेज डिक्रीजेस। फाइनली लॉस इन ट्रांजिट इज डेबिटेड एंड परचेज इज क्रेडिटेड। कितना है रुपीज? 1500. Understood? Loss by transit expense, purchase also expense. एक एक्सपेंस बढ़ा, एक एक्सपेंस घटा। क्यों निकाला परचेज में से? क्योंकि परचेज में से वही परचेज दिखने चाहिए जो आपने सेल किया, मैचिंग, वही कंपेयर हो सकेगा, प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन पता चलेगा। ओके, नाउ गुड्स अगर यूज किया, गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट, तो वो क्या कैटेगरी में जाता है? गुड्स अकाउंट इज एसेट। गुड्स मतलब अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज एसेट। रूल एप्लीकेबल क्या होगा? अगर लॉस इन ट्रांजिट है और गुड्स है, तो लॉस तो एक्सपेंस हुआ, गुड्स एसेट हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा, गुड्स गॉन, राइट, आउट ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट इन बिजनेस, दे आर गॉन। सो इफ एसेट डिक्रीजेस देन क्रेडिट। फिट हो रहा है बराबर? इधर क्या है? गुड्स गॉन या गुड्स डिक्रीजेस, एंड फाइनली
Loss in transit account is debited and goods lost in transit account is credited. This is how much? 59. Loss in transit debit and goods lost in transit credit. Loss in transit debit and goods lost in transit credit. Understood? Got that all of you? बढ़े आगे. Purchased furniture. एक काम करो ना, नेक्स्ट 5 खुद से करो. मॉडल 11, 12, 13, 14, 15. All 5 try it on your own. 11, 12, 13, 14, 15. All 5 आराम से करना. सारा कंसेप्ट एक बार किया हुआ है आपने, वही रिपीट हो रहा है. दिमाग लगाओ. मॉडर्न से सॉल्व करो, ट्रेडिशनल भी बैक ऑफ द माइंड फिट करो. कम ऑन. 11, 12, 13, 14. Machinery